اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے تیرا دھیان رکھنا ہے۔ ہم نے پچھلے موضوعات میں دیکھا کہ عقیدہ کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، اور اسی حوالے سے دیکھا کہ ایمان ہماری زندگی کا کتنا گہرا اور اہم تجربہ ہے۔ ایمان محض لفظوں کا زبان سے نکل جانا، صرف زبان سے اقرار نہیں۔ ایمان دراصل ان 6 حقائق یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتوں، کتابوں، رسولوں، آخرت کے دن اور تقدیر جیسے حقائق کو سمجھنے اور دل سے ان پر یقین کرنے کا نام ہے۔ دراصل ایمان کا عمل سب سے زیادہ انسان کے قلب و ذہن سے تعلق رکھتا ہے۔ جب تک ان حقائق کی انسان کو سمجھ نہیں آتی، اس وقت تک انسان دل سے یقین نہیں کر پاتا، صرف لفظی اظہار رہ جاتا ہے۔ اب چاہے معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہو یا رسولوں کا، کتابوں کا ہو یا فرشتوں کا، آخرت کا ہو یا تقدیر کا، ہر ایک کو اچھے طریقے سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے منطقی استدلال، لاجیکل ریزننگ کی بہت ضرورت ہے، اور آج کے دور میں سب سے زیادہ کام اسی پر ہی کیا گیا کہ لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے ذات سے رشتہ ٹوٹ جائے، اور ہماری نسل اس کا شکار ہو گئی۔ مسلمانوں کے بچے بڑی تعداد میں ملحد، ایتھیسٹ ہو گئے۔ دنیا میں انسانوں کی بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کی ذات کی منکر ہو گئی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کو سمجھا نہیں۔ اصلاً سوسائٹی میں والدین بھی ذمہ دار ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی حاکم ہے اور اسے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ امام حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر کے معاملات کا افسر ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی افسر ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ خادم اپنے آقا سید کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ باتیں سنی ہیں، اور مجھے خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مرد اپنے باپ کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ غرض تم میں سے ہر فرد حاکم ہے اور سب سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تعلیمی ادارے بھی، اور اس لحاظ سے امت مسلمہ کا ہر فرد ذمہ دار ہے۔ اس کی ذمہ داری میں جتنے افراد ہیں ان کے بارے میں اسے جواب دہی ہوگی۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کا معاملہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایمان دراصل کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے، ایمان قول بھی ہے اور عمل بھی، یعنی ایمان کا معاملہ زبان کا بھی ہے اور دل کا بھی۔ عمل سب سے پہلے قلب کا ہے، پھر اعضاء کا عمل۔ اعضاء میں زبان بھی شامل ہے اور باقی اعضاء بھی۔ ایمان محض ایک کیفیت نہیں، ایمان قول بھی ہے اور عمل بھی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کیا ہے؟ دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین، اور یہ یقین اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ اس کی صفات کا علم نہ ہو اور صفات کی سمجھ نہ آئے۔ ایمان دراصل دنیا میں رہتے ہوئے، اسی زندگی میں معمول کے سب کام کرتے ہوئے، ہر معاملے میں ہر لمحے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ یعنی بندہ مومن اپنی زندگی میں جس وقت بھی کوئی کام کرتا ہے، وہ نظر اٹھاتا ہے یا جھکاتا ہے، کچھ سنتا ہے یا بولنا چاہتا ہے یا کچھ سوچنا چاہتا ہے، تو اس کے دل میں پہلی بات اگر یہ آنا شروع ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند، تو سمجھ لیں کہ ایمان اپنا کام کر رہا ہے۔ یعنی ایمان قول کے ساتھ عمل بھی ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں کچھ بھی کرتے ہوئے یہ بات کبھی آتی ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آئے گا یا یہ ناپسند ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اس کے لیے محض لفظوں کا معاملہ ہے، زندگی کا نہیں، کیونکہ ایمان کا معاملہ سیدھا سیدھا یقین کا معاملہ ہے، اور یقین کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ، جب انسان دنیا میں مشغول ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، آپ اسے محسوس کرتے ہوں گے، جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق پڑتا ہے اتنا جلدی انسان کو خلا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام
रज़ी अल्लाह अन्हुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और इसका इजहार करते कि वो अबू बकर सिद्दीक़ के पास गए। एक सहाबी अबू बकर सिद्दीक़ के पास गए और उन्हें कहा कि मैं मुनाफिक हो गया। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा, जब मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होता हूँ तो मेरी कैफियत फ़र्क होती है, लेकिन जब मैं घर जाता हूँ अपने बीवी बच्चों के दरमियान अपने कारोबार में मेरी कैफियत फ़र्क हो जाती है। उन्होंने कहा, ये मेरे साथ भी है। दोनों ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने का मकसद पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं मुनाफिक हो गया। उन्हें अपनी ज़ात में निफाक महसूस हुआ, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जो ईमानी कैफियत होती है वो अमल की दुनिया में जाते हुए नहीं रहती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक घड़ी की बात है, यानी एक घड़ी अल्लाह ताला की याद की होती है और दूसरी घड़ी गफलत की होती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हर वक्त तुम्हारी वही कैफियत रहे जो इस मजलिस में होती है तो फरिश्ते तुम्हारे बिस्तर पर तुमसे मसाफा करें, यानी आप ईमान की इस दर्जे पर पहुंच जाओ जैसे फरिश्तों का ईमान है कि वो नाफरमानी नहीं करते। इस दुनिया में इंसान को अपने अंदर मशगूल करने की बहुत सलाहियत है। इंसान जब मशगूल होता है तो उसके अंदर खला पैदा होता है। इस खला को अल्लाह ताला की याद के सिवा कोई चीज़ पूर्ण नहीं कर सकती। इसलिए इंसान को ज़िक्र की, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ की, दुआ करने की बहुत ज़रूरत है। जो इंसान इस कैफियत को समझ जाता है वो अल्लाह ताला को याद करता है और अल्लाह ताला से दुआ करता है, फिर लौट आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकसद के लिए इस्तग़फ़ार भी करते थे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम फरमाते हैं, हम गिनते रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बाज़ औक़ात 70 दफ़ा, बाज़ औक़ात 100 दफ़ा अल्लाह ताला को याद करते थे, इस्तग़फ़ार करते थे। इस्तग़फ़ार भी बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला की याद है। इंसान के अंदर जब ऐसी कैफियत पैदा हो जाए तो अल्लाह ताला से मदद मांगता है। कभी उसकी तस्बीह करता है, कभी उसकी हम बयान करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का इजहार करता है। जब रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपनी कैफियत को रखता है तो उसके अंदर का खला पुर होना शुरू हो जाता है। कितने ही लोग कहते हैं हमारे अंदर बहुत घबराहट आती है। ये घबराहट इसी वजह से आती है कि इस ताल्लुक़ में कमी महसूस होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए कितनी चीज़ें ईजाद की गई। लोगों से कहा गया कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, मौसीकी आपके लिए मददगार होगी। कुछ लोग कहते हैं इंसान के लिए तफरीह, एंटरटेनमेंट भी मददगार होती है। कुछ खा लें, बाहर चले जाएं, तफरीह कर लें, दोस्तों के साथ गपशप लगा लें। अब तफरीह के बुनियादी रूट को देखेंगे, फ़राह, खुशी। फिर खुशी कहाँ हासिल कर रहे हैं? रब के ताल्लुक़ में तो ऐसा नहीं है। फिर कहीं और सोचिए तो मेरी खुशी रब की खुशी में है या रब को भुलाने में। इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं बनाया कि वो किसी भी जगह पर जाकर मुस्तकिल खुश रह सके। इसका ये मतलब नहीं कि वो कहीं बाहर ना जाए, कुछ अच्छा खाए पिए नहीं, या खूबसूरतियों से लुत्फ़अंदोज़ ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके लिए कितने तरीके हमें सिखाए हैं। जैसे हमने पहला तरीका ज़िक्र का देखा, दुआ का देखा। इसी तरह से जो चीज़ इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है वो तरतील है, जो कि जमालियात की तस्कीन भी है, क्योंकि ये सौती हुस्न है। आवाज़ का हुस्न इंसान को मुतासिर करता है। इंसान के लिए तदब्बुर और तफक्कुर के लिए सबसे प्यारा तरीका भी है। इंसान गौर व फिक्र करने के लिए के काबिल होता है। खूबसूरत आवाज़ की वजह से इसको अल्लाह ताला की बातें गहराई के साथ समझ आती हैं। ये अल्लाह ताला पर ईमान के लेवल को बढ़ाने वाली चीज़ भी है, और तिलावत में और तिलावत भी। फिर आप देखिए, जैसे नमाज है, जैसे सदका करना है, जैसे रोज़े रखना है, जो इबादत हैं वो अल्लाह ताला के साथ और ज़्यादा बेहतर ताल्लुक़ पैदा करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से आप देखें कि जब अल्लाह ताला पर ईमान है तो ईमान का लाज़मी तकाज़ा मोहब्बत है। जैसे कुरान हकीम में आता है, जो लोग ईमान लाए वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में शदीद होते हैं। सूरत बकरा आया 165। अल्लाह ताला के साथ शिद्दत की मोहब्बत रखने वाले किस तरह से ज़ुबान से भी इजहार करते हैं और इस मोहब्बत के लिए
कोई ना कोई नजराना भी पेश करते हैं। अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए जो लोग कोशिश करते हैं वो सबसे बड़ा काम करते हैं, लोगों को इस मोहब्बत की दावत देते हैं। दावत इल्लल्लाह, अल्लाह ताला से मोहब्बत की दावत है, अल्लाह ताला से उम्मीद बांधने की दावत है। आप जितनी भी इबादत करेंगे इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? हुब्बे इलाही, यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत। जितनी अच्छी इबादत होगी इतना ज़्यादा खौफ, खशियत, तकवा और ताल्लुक़ बढ़ेगा और ज़्यादा आप उम्मीद बांधेंगे और ज़्यादा उसकी ज़ात पर इत्मीनान करेंगे और ज़्यादा तवक्कुल करेंगे। ये दिल की इबादत हैं और इनसे इंसान ज़िंदगी सीखता है। अल्लाह ताला पर ईमान के साथ ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी तब्दीली आती है वो इबादत का हुस्न है, इखलास है। और उसकी दलील बुखारी की हदीस नंबर 50 में है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में तशरीफ़ फरमा थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया। इसने जो सवालात किए उनमें से एक सवाल इबादत के हुस्न, इसमें इखलास के बारे में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो। अगर ये दर्जा हासिल ना हो तो फिर ये तो समझो कि वो तुमको देख रहा है। जब आप तसव्वुर करते हैं कि अल्लाह ताला मेरे सामने है और आप उसे देखना शुरू हो गए हैं, हालांकि उसकी शक्ल तो नहीं दिखाई देती, लेकिन तसव्वुरात, इमेजिनेशन में आप पहुंच जाते हैं और आप ये महसूस करते हैं अल्लाह ताला के सामने खड़ी हूँ। इस दर्जे को मुशाहदा कहते हैं। दूसरा दर्जा मुराक़बे का है, अल्लाह ताला की निगरानी का शऊर कि अल्लाह ताला देखता है। जब आप देखते हैं तो आपके दिल के अंदर मोहब्बत भी पैदा होती है और खौफ भी। मुराक़बे की वजह से खौफ ज़्यादा पैदा होता है, इंसान के दिल के अंदर खशियत पैदा होती है। यही चीज़ें इंसान की इबादत को बदल देती हैं। दरअसल अल्लाह ताला पर ईमान मुजर्रद चीज़ नहीं। आपने एक दफ़ा कह दिया कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ये ज़िंदा ईमान नहीं, महज अल्फाज हैं। जैसा कि इकबाल ने कहा, लुग़त गरीब जब तक तेरा दिल न दे गवाही। अजनबी ज़बान के अल्फाज हैं, जब तक आपका दिल गवाही नहीं देता। और दिल की गवाही के लिए अल्लाह ताला की सिफ़ात का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। जब आप इतना ज़्यादा अल्लाह ताला की ज़ात के साथ मुतल्लिक़ हो जाते हैं, आपका दिल गवाही दे देता है, फिर ज़बान भी गवाही देता है और दावत इल्लल्लाह का काम शुरू हो जाता है। यही दावत इल्लल्लाह का काम है, शहादत देना, गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई बड़ा नहीं, अल्लाह ताला के सिवा किसी की सारी बातें नहीं सुन सकता। वो सुनता है और वही जवाब देता है, वही रिज़्क देता है, वही शिफा देता है, वही सहारा देता है, वही इंसान के लिए मददगार है। ये गवाही हर मौका पर देने की ज़रूरत है। और आप जानते हैं इस उम्मत का नाम पहली किताबों में क्या आया? हम्मादून, अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा हमद करने वाली। मोमिन तो हर वक्त गवाही देता है अल्हम्दुलिल्लाह कहकर। तमाम तारीफ़, शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है। आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर आगे देखेंगे कैसे हम इंसान अल्लाह की सिफ़ात पर गौर व फ़िक्र करें और अल्लाह से मोहब्बत को बढ़ाएं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और उस पर हमें इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।